हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय राधा नील माधव नील माधव राधा नील माधव राधे। जय गौरनीताय जय गौरनीताय जय गौरनीताय जय गौरनीताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत His Divine Grace Abhay Charanavinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Neela Madhava Ki Jai Shri Sita Ram Lakshman Hanuman Ki Jai Shri Ram Navami Mahotsava Ki Jai Nitai Gaura Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಯಾರದೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 4 ವೀಲರ್ಸ್, ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಚನೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿವೇದನೆ. ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ನಿವೇದನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗ್ದಿರಿ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ಸ್. What is a danda? Hare Krishna. So, how will we coordinate when I want to do the next? Can we keep this here? Then I can also. I can only see here, but I can't control the flow of the slides. Huh? Yeah, but I have to tell you every time I want the next slide. No, this is not the slideshow. That PPT is in that one. I need this. Okay, ठीक है, we'll manage. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvatam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravane Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurun Dinataranam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratvishe Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktashaktikam Aradhyo Bhagavan Vrajeshatanayas Tadhama Vrindavanam Ramya Kachidupasana Vrajavadhu Vargenaya Kalpita Srimad Bhagavatam Pramanamamalam Prema Pumartho Mahan
श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी धनमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको श्री रामनवमी के पावन दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान श्री रामचंद्र का जन्मदिन है, उनका आविर्भाव दिन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस बात को तत्वतः जानता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, इस भौतिक संसार से इनका कोई संबंध नहीं है, वो पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता, बल्कि वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। शाश्वत जीवन, भगवान की लीला में प्रवेश, मृत्यु पे विजय, भगवान का सानिध्य, ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं ये जानकर कि भगवान का जन्म और भगवान के कार्य दिव्य हैं। परंतु कैसे जान लेना चाहिए इनको? तत्वतः, मनमाने ढंग से नहीं, तत्वतः, शास्त्रों के आधार पर, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ये स्पष्ट ज्ञान हमें होना चाहिए। तो श्री राम श्री कृष्ण के अवतार हैं, तो जो बातें श्री कृष्ण के लिए लागू होती हैं वो श्री रामचंद्र के लिए भी लागू होती है। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, तो ये श्री राम के लिए भी है। तो श्री राम का जन्म, श्री राम के कर्म, ये सब दिव्य हैं। दिव्य अर्थात उनका जन्म और उनके कर्म हमारे जन्म और कर्मों की तरह नहीं है। हमारा जन्म कैसे होता है? हम बाध्य होते हैं जन्म लेने के लिए। हमारे पूर्व जन्मों के हम पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें एक अमुक प्रकार के योनि में अमुक प्रकार के कोई माता पिता आदि मिल जाते हैं, एक विशेष कोई परिस्थिति प्राप्त हो जाती है और फिर हमें जन्म लेने के बाद सुख दुख भोगना पड़ता है हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार। प्रारब्ध क्या है? हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल, उसे प्रारब्ध कहते हैं। कभी भाग्य कहते हैं, नसीब, किस्मत, फेट, डेस्टिनी। और जब जन्म होता है तो ये कोई आनंद का काम नहीं होता। जन्म लेने के बाद सबको आनंद आ जाता है, लेकिन जन्म लेते समय बच्चे को कितना कष्ट होता है, माँ को कितना कष्ट होता है। हम सबको इसका अनुभव है, परंतु हम भूल चुके हैं। आप में से कितने भक्तों को याद है जब आपने जन्म लिया था? जन्म लेने के जो क्षण हैं,
कितने भक्तों को याद है? याद है किसी को? याद है? नहीं। परंतु ये बहुत कष्टदायक समय था माँ के लिए भी। आप में से जो माताएं हैं, आपने जो जन्म दिए बच्चों को, आप जानते हैं कि जो जन्म देने की पद्धति है वो कष्ट से, दर्द से भरी हुई है। अंग्रेजी में इसे लेबर पेन कहते हैं। जब बच्चे को जन्म दिया जाता है तो उसे बहुत दर्द होता है। लेबर प्लेजर नहीं कहते। बच्चे बच्चे को जन्म देते समय कभी भी माँ प्रसन्न होके, हंसमुख होके बच्चे को जन्म नहीं देती है। बराबर है ना, जो माताएं यहाँ पे है। लेकिन बाद में अच्छा लगता है कि हाँ जन्म हो गया, लेकिन जन्म का समय बहुत कठिन होता है। परंतु भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता है। और भगवान जब जन्म लेते हैं, तथा कथित जन्म लेते हैं, इसलिए उनके जन्म को आविर्भाव कहते हैं, तथा कथित जन्म। फिर उसके बाद में जो कार्य करते हैं वो भी दिव्य होते हैं। हम लोग जब कार्य करते हैं तो 3 गुणों के अधीन होकर करते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। जिस गुण के प्रभाव में हम हैं किसी क्षण पे, उस तरह के कार्य हम करते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों के अधीन नहीं है। वो 3 गुणों के परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कार्यों को लीला कहते हैं। तो जितने भी अवतारों में भगवान प्रकट होते हैं वो प्रकट होके लीला करते हैं। कई ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो तरह तरह के गलत काम करके कहते हैं ये मेरी लीला है। अपने आप को अवतार कहलाते हैं और अवतार ऐसे अपने आप को घोषित करने के बाद फिर अपने गलत काम के लिए वो ऐसे बहाना बनाते हैं कि मैं अवतार हूं और ये सब मेरी लीला है। परंतु ऐसे लीला बद्ध जीव के लिए नहीं है, ये केवल भगवान के लिए है। और भगवान के उन भक्तों के लिए है जो कि शुद्ध पूरी तरह से 100% बन चुके हैं और जो भगवान के पार्षद हैं। तो श्री रामचंद्र ऐसे प्रकट हुए। आज की तिथि कौन सी है, कोई बता सकते हैं? हाँ, तिथि तिथि अच्छा, संपूर्ण नहीं, केवल महीना चैत्र शुक्ल नवमी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। और इस तिथि पर भगवान ने श्री रामचंद्र के रूप में जन्म लिया था वृंदावन में। अयोध्या, हाँ गलती हो गई। ये देखना चाहते थे कि कोई सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, नहीं तो लोग हाँ 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 मिलाते जाते हैं। हाँ, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, परंतु श्री राम के रूप में प्रकट हुए अयोध्या में। तो हमने सोचा कि आज सुबह और शाम हम आपको अयोध्या की यात्रा में ले जाएंगे। आप सोचेंगे कैसे जाएंगे इतनी दूर? धारवाड़ से ट्रेन में बैठेंगे, फ्लाइट भी हुबली से लेंगे तो बहुत समय लगेगा, कैसे यात्रा हो जाएगी सबके लिए? परंतु भगवान की लीलाओं के संबंध में स्थान और काल की कोई सीमा नहीं है। श्रील प्रभुपाद ये बार बार समझाते हैं कि जहां पर हम भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं, जिस स्थान पे भगवान का गुणगान होता है, उनकी सेवा होती है, वही उनका धाम है। अवश्य जब हम वृंदावन जाते हैं, मथुरा, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, ये सब भगवान के धाम है। जब वहां जाते हैं, धाम का प्रभाव का अनुभव करते हैं और हृदय में परिवर्तन होता है।
जैसे ही धाम के परिसर में हम प्रवेश करते हैं, तुरंत हम अनुभव करने लगते हैं कि कुछ परिवर्तन हो रहा है हृदय में। ये है भगवान के धाम का प्रभाव। वही धाम भगवान प्रकट कराते हैं किसी भी स्थान में। देखिए, ये पृथ्वी लोक के ऊपर धाम है, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम। वैसे तो ये भगवान के आध्यात्मिक जगत में होते हैं, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम इत्यादि अवतीर्ण होते हैं अर्थात उतर के आते हैं उनके धाम से, यहाँ भौतिक जगत में पृथ्वी लोक के ऊपर अवतरति इति अवतारः, अवतीर्ण होकर उतर के जब आते हैं तो अपने धाम को भी साथ में लेकर आते हैं। वो धाम को प्रकट कराते हैं पृथ्वी लोक पर। तो इसलिए भगवान के लिए कोई सीमा नहीं है, किसी भी बात का बंधन नहीं है। अपने धाम को वो यह प्रकट करा सकते हैं। और इतना ही नहीं, जब उसी धाम के बारे में हम स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, चर्चा करते हैं, तो फिर वही धाम इस भौतिक सृष्टि के किसी भी स्थान में भी प्रकट हो सकता है। यदि हम धारवाड़ में हों, हम लंदन में हों, टोक्यो में हों, या तो फिर हम अयोध्या धाम में हों, यदि अयोध्या की चर्चा हो रही हो और श्रद्धालु भक्त एकत्र, हरे कृष्णा, एकत्र होके भगवान श्री राम का गुणगान कर रहे हैं, तो फिर वहीं पे अयोध्या धाम का प्राकट्य होता है। यहाँ पर वैसे भी श्री श्री राधा नील माधव विराजमान हैं, तो ये वैसे भी वृंदावन यहाँ पे प्रकट हो चुका है। केवल हमारी चेतना की बात है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान का धाम ये केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, परंतु भगवान का धाम एक चेतना का स्तर भी है। यदि हमारी चेतना भगवान में मग्न रही तो हम भगवान के धाम में निवास करते हैं, चाहे हमारा शरीर कहीं भी क्यों ना हो। तो इसलिए यहाँ धारवाड़ में बैठ के यदि हम अयोध्या की यात्रा में निकल पड़े, अर्थात अयोध्या की चर्चा करें, अयोध्या के चित्र देखें लीला स्थलियों की, तो फिर यहाँ पर भी अयोध्या धाम प्रकट है। ऐसे हमें मान लेना चाहिए और जान लेना चाहिए। ये तत्व है। आध्यात्मिक तत्व कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। चेतना के स्तर पे है ये। जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना है, वैसे वैसे हम या तो भौतिक जगत, या तो हम भगवान के धाम में निवास करेंगे। तो भगवान के धाम में और भौतिक जगत में अंतर क्या है? चेतना, बस। यदि हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित हुई या राम भावना भावित हुई, तो हम भगवान के धाम में निवास करते हैं। भले हम धारवाड़ में हो, बेंगलोर में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो। और यदि हम धाम में रहते हुए भी, हमारा शरीर धाम में होकर भी हम भगवान का स्मरण, श्रवण, कीर्तन आदि नहीं करते हैं, तो फिर धाम में रहते हुए भी फायदा तो होगा, लाभ तो होगा, परंतु पूरा लाभ नहीं होगा। इसलिए यहां धाम की चर्चा करेंगे तो ये मान लीजिए कि हम अयोध्या में ही निवास कर रहे हैं। और आज के दिन प्रवचन के बाद भी हमें राम चेतना में रहना है, राम भावना भावित होना है। तो आइए हम अभी चलते हैं अयोध्या धाम की यात्रा में। सो आप सब यात्रा में रहेंगे ना? तो क्या करना चाहिए आपको यात्रा में रहने के लिए? सबसे पहली बात, जागृत अवस्था में रहना चाहिए, सबसे पहली बात है। और दूसरी बात, जागृत अवस्था में रह के भी
जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में नहीं जाना है, पूरी तरह से जागृत होना है, समाधि की अवस्था में रहना है। आप जानते हैं ना, चेतना के साधारणतः 3 स्तर होते हैं। एक स्तर है जागृत अवस्था, दूसरा है स्वप्न अवस्था, और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद, जिसमें सपने भी नहीं आते हैं। साधारणतः हम इन 3 स्तरों में भ्रमण करते हैं, चेतना के स्तरों में। परंतु एक चौथा स्तर है जिसको समाधि या तुरिया कहते हैं। समाधि का अर्थ है कि हम भगवान के लीलाओं में, भगवान के नाम में, भगवान की कथाओं में इत्यादि हम मग्न रहते हैं। तो जब हम भगवान के ध्यान में रहते हैं, हम समाधि में स्थित होते हैं। जब भगवान का ध्यान हट जाता है, समाधि से हम बाहर फिर से भौतिक जगत में आ जाते हैं। यहाँ राजमार्ग पे सूचनाएं होती हैं, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। ऐसे देखा आपने? जो गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी चलाते चलाते ध्यान हट गई, एक क्षण के लिए भी दुर्घटना हो सकती है। उसी प्रकार से भौतिक जगत में रहते हुए जब हम भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं इत्यादि, तो हमारे ध्यान वहां से हटी तो दुर्घटना घट सकती है ना। तो इसलिए जब हम इस यात्रा में जाएंगे तो हम सब ध्यान करेंगे। आप सब वो चित्र देख सकते हैं ऊपर कि खंबा बीच में आ रहा है थोड़े भक्तों के लिए। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप में से जो वीडियो ले रहे हैं, याद रखिए, जब ऐसे कोई चित्र आदि दिखाए जाते हैं तो केवल प्रवक्ता के ऊपर वीडियो नहीं रखना है, चित्रों को भी दिखाना है। तो यहाँ से चित्र कैसे दिखेंगे? ठीक से दिखेंगे या यहाँ से दिखेंगे? कंप्यूटर से दिखाओगे? ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है। तो अयोध्या का नाम सबने सुना है। यहाँ तो किसी ने नहीं सुना है तो दंड मिलना चाहिए, है ना। भारत में जन्म लेने के बाद यदि हमने वृंदावन, अयोध्या, इनका नाम नहीं सुना है तो फिर क्या लाभ? अयोध्या शब्द का अर्थ क्या है ये नहीं जानेंगे तो दंड नहीं मिलेगा, डरिए मत। लेकिन अयोध्या शब्द का अर्थ बताइए। हाँ, जो किसी को जीत नहीं सकता, जिस राज्य को कोई हरा जीत नहीं सकता। कैसे? युद्ध, युद्ध से योध्य, अयोध्य जिसके विरोध में युद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात करने से भी हमारा प्रयास निष्फल रहेगा, क्योंकि ये अयोध्या ध्यान बहुत शक्तिशाली है। वैसे तो ये प्रभु ये भौतिक जगत में नहीं है अयोध्या या वृंदावन, पुरी, मायापुर इत्यादि। देखने में हमें ऐसे लगता है बाहरी दृष्टि से कि ये भी भगवान, ये भी भौतिक सृष्टि के भीतर है, परंतु ऐसा नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये आध्यात्मिक जगत जब इस भौतिक सृष्टि में प्रकट हो जाता है तो देखने के लिए हमें ऐसे प्रतीत होता है कि ये भी भौतिक जगत के अंदर है, परंतु ऐसा नहीं है।
तो अयोध्या, तो जिसके विरोध में युद्ध नहीं किया जा सकता है, तो इसका और एक नाम क्या है? साकेत। साकेत, जो कि वास्तव में भगवान का निवास स्थान है, इसको साकेत कहते हैं। तो अयोध्यापुरी या साकेतपुरी, ये दोनों नाम है। और इसको किसने बनाया था? सबसे पहले बनाया था किसने? निर्माण किया था किसने? बहुत अच्छा, राजा इक्ष्वाकु ने। तो इक्ष्वाकु कौन थे? रघुवंशी। रघुवंश तो बाद में आए। रघु, हाँ, सबसे पहले थे विवस्वान। विवस्वान सूर्यदेव है। तो सूर्यदेव के अनेक कितने पुत्र थे? सूर्यदेव के 2 पुत्र और 1 पुत्री। एक पुत्र थे श्राद्ध देव, वैवस्वत। जो विवस्वान से आते हैं उनको वैवस्वत कहते हैं। वो मनु बने। मनु से शब्द, अंग्रेजी शब्द मैन आता है, हिंदी शब्द मनुष्य आता है, संस्कृत शब्द भी मनुष्य, मनु से। तो ये आदि मानव है मनु, इसलिए उनका नाम, ये शब्द है मनुष्य। तो विवस्वान के एक पुत्र हैं वैवस्वत मनु, जिनका नाम है श्राद्ध देव। उनके भाई और बहन कौन है? वैवस्वत मनु के भाई और बहन यमराज और यमुना, यम और यमी। तो भाई भाई बहन दोनों यमराज और यमुना। तो वैवस्वत मनु से वास्तव में सूर्यवंश प्रारंभ होता है। शास्त्रों में ऐसे बताया गया है कि इस भौतिक सृष्टि में क्षत्रियों के 2 वंश हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश सूर्यदेव से आता है, चंद्रवंश चंद्रदेव से आता है। ठीक है? तो सूर्यवंश प्रारंभ होता है वैवस्वत मनु से। तो वैवस्वत मनु के अनेक पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु महाराज। इक्ष्वाकु महाराज के भाई कई 1-2 भाइयों के नाम बता सकते हैं आप? नभग। नभग का नाम सुना है? नभग के पुत्र थे नाभाग। नाभाग के पुत्र थे अम्बरीश महाराज। उसी प्रकार से और एक शर्याती उनके भाई थे, और उनके वंशज थे फिर रेवती, जिनका विवाह बलराम से हुआ अंतर में आगे चल के। तो खैर ऐसे उनके कई भाई थे, परंतु इक्ष्वाकु राजा जो वैवस्वत मनु के पुत्र थे, फिर उनका जो पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र, वो थे विकुक्षी। तो विकुक्षी ये श्री राम के पूर्वज हैं। विकुक्षी के भाई थे निमि। तो निमि सीता देवी के पूर्वज है। ठीक है? तो ये 2 वंश शुरू हो गए। तो महाराज इक्ष्वाकु ने अयोध्या धाम का निर्माण किया, अयोध्या नगरी का निर्माण किया। तो इक्ष्वाकु राजा के बारे में आपने कहाँ नाम सुना है? भगवद गीता में। कौन सा श्लोक? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने ये भगवत गीता का ज्ञान जो है सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने उनके पुत्र मनु को दिया था। मनु अर्थात वैवस्वत मनु, यही वैवस्वत मनु। विवस्वान मनवे प्रावः तो मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो मनु ने, वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। तो इस प्रकार से राजा इक्ष्वाकु से भी और
परंपरा शुरू हो गई। तो ठीक है, ये है राजा इक्ष्वाकु। बहुत शूरवीर राजा थे। राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी के पूर्वज, ये पूर्वज हैं श्री राम के। और सीता देवी के पूर्वज कौन है? निमि। निमि और विकुक्षी भाई थे। तो राजा इक्ष्वाकु के संबंध में श्री राम का कोई नाम बताएंगे आप? हाँ? इक्ष्वाकु कुल तिलक, वाह सुंदर। वैसे भगवान के अनगिनत नाम हम बना सकते हैं। कोई भी शब्द जो है उसके आपके सूर्य है, उसके अनगिनत नाम आप बना सकते हैं। केवल व्याकरण के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए और प्रामाणिक होने चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो आप कितने भी जितने चाहे आप नाम बना सकते हैं। इक्ष्वाकु कुल तिलक। और एक नाम है ऐक्ष्वाकः। ऐक्ष्वाकः का मतलब है इक्ष्वाकु के कुल में आने वाले, इक्ष्वाकु से संबंधित। तो इस प्रकार से इक्ष्वाकु के दो पुत्रों से ये दो परंपराएं, ये दो जो वंश हैं वो शुरू हो गई। एक में आए श्री राम, दूसरे में आई सीता देवी। तो खैर ये इक्ष्वाकु राजा ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूर्यवंशी राजा है। उन्होंने अयोध्या नगरी का निर्माण किया, अपनी राजधानी बनाई उन्होंने। और अयोध्या वैसे शास्त्रों में बताया गया है सप्तपुरियों में से एक है, मोक्ष, सप्त मोक्षपुरी। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मथुरा है इत्यादि, उनमें से अयोध्या भी एक सप्त मोक्षपुरियों में से एक है, जहां जाके मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और प्राचीन काल से अयोध्या या साकेत का उल्लेख शास्त्रों में है। वैसे स्कंद पुराण में बताया गया है कि अयोध्या नगरी जो है इसका आकार एक मत्स्य का है। मत्स्य अर्थात मछली। और ये अयोध्या नगरी बैठी हुई है भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के ऊपर, थोड़ी उठी हुई है। तो ऐसे स्कंद पुराण में वर्णन है। तो इन चीजों को हमें याद करना चाहिए जब हम वास्तव में जाएंगे किसी स्थान में, किसी धाम में, किसी स्थान में नहीं, किसी धाम में, तो हमें ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए कि भले हमारे आंखों के लिए ये धाम साधारण क्यों न लगे, परंतु शास्त्रों की दृष्टि से हमें देखना चाहिए। इसको कहते हैं शास्त्र चक्षु। साधारण दृष्टि से हमें नहीं देखना है, शास्त्रों की दृष्टि से देखना है। तो ये अयोध्या महात्म्य में कहा गया है। और बाहर से इसकी परिक्रमा की जाए तो 84 क्रोस की परिक्रमा है। तो इसकी बात हम अंत में करेंगे। वृंदावन में भी 84 कोस परिक्रमा है। तो ये 84 आंकड़ा जो है ये अब कई बार हम देखेंगे। जब वाल्मीकि जी अपने रामायण में कथा प्रारंभ करते हैं, लवकुश ये रामायण सुनाते हैं, श्री राम भी सभा में उपस्थित होते हैं। वो भी अपने दो पुत्रों से राम कथा सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। भगवान भले सुने अपनी कथा को, उनको आनंद आता है, परंतु हमें अपनी कथाएं नहीं सुननी चाहिए। राम ने भी अपनी कथाएं सुनी, राम का भी गुणगान किसी ने किया, तो हमारा गुणगान भी किसी को करना चाहिए, हमें भी सुनना है। नहीं, अपनी प्रशंसा सुन के भक्त को खराब लगना चाहिए, सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये विष जैसे प्रतीत होना चाहिए। यद्यपि बद्ध अवस्था ऐसी है कि हमें अपनी प्रशंसा अमृत तुल्य दिखाई सुनाई पड़ती है, परंतु हमें अपनी प्रशंसा कभी सुननी नहीं चाहिए। भगवान की प्रशंसा, भगवान के भक्तों की प्रशंसा अवश्य सुननी चाहिए। तो भगवान श्री राम स्वयं वहां थे, तो लव कुश ने, जो उनके पुत्र हैं, और उस समय श्री राम को पता नहीं था कि ये उनके दो पुत्र हैं। तो लव कुश जो कि वाल्मीकि के शिष्य थे,
जिनको वाल्मीकि मुनि ने सारा रामायण सिखा लिया था, सारे 24,000 श्लोकों को कंठस्थ करवाया था। तो वो जगह जगह संगीतमय ढंग से रामायण की रचना कर रहे थे। जब किसी ने सुना, फिर धीरे धीरे खबर पहुंची राम के कानों में, और राम ने उनको दरबार में आमंत्रित किया। तो उनकी प्रारंभ में ही कथा कीर्तन के प्रारंभ में उन्होंने अयोध्या नगरी का वर्णन किया, काफी विस्तार में किया वर्णन। हमारे लिए भी श्रवणीय है, परंतु आज संपूर्ण कथा तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अनेक स्थानों में भ्रमण करना है। और हमारे पास केवल आज सुबह और आज शाम का समय है। परंतु इतना कहना पर्याप्त है कि लव और कुश कहते हैं कि एक समय ये नगरी है, अयोध्या नगरी, और ये दिव्य है, बहुत सुंदर है, बहुत विशाल नगरी है। इसकी सड़कें बहुत चौड़ी हैं, बहुत लंबी हैं, बहुत अच्छी तरह से ये अयोध्या शहर बनाया गया है। और इसमें जो बड़े बड़े हाथी जो हैं वो सुगंधित जल छिड़कते हैं सड़कों में। तो इसलिए जब कोई भी अयोध्या के सड़कों में जाता है तो उसे सब जगह सुगंध प्राप्त होता है। आजकल के आधुनिक सड़कों में क्या सूंघने को मिलता है? जो गाड़ियां अपना धुआं निकालती हैं, प्रदूषण, वही बस सूंघने को मिलता है, जिससे तरह तरह के फेफड़ों में बीमारियां आदि हो जाती है। और वहां पे यद्यपि इतना बड़ा शहर था, नगर था अयोध्या, फिर भी वहां पे तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के वृक्ष, फूल, इनका भी सुगंध, इनका भी सौंदर्य दिखाई पड़ता था। तो पक्षियों की गूंजने की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। इस तरह से बहुत ही विस्तार में लव और कुश एक वर्णन करते हैं कि अयोध्या नगरी किस प्रकार से हुई होगी। हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं इन वर्णनों को सुन के। तो खैर, इस प्रकार से अयोध्या का स्थान है भगवान श्री राम का स्थान। श्री राम का जन्म वहां हुआ है और श्री राम की लीलाएं भी अनेक वहां पर हुई। यद्यपि श्री राम अयोध्या के बाहर भी कितने सालों तक रहे? वनवास में 14 वर्षों तक रहे। परंतु अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि किस आयु में वनवास के लिए निकले श्री राम? नहीं, किस आयु, उनकी आयु क्या थी जब वो वनवास में गए? 27। उसके पहले भी वो अयोध्या से बाहर गए थे। कौन ले गए थे उनको? विश्वामित्र मुनि। इसके पीछे भी एक कारण था। कारण क्या था? कि उनको विवाह करना था सीता देवी के साथ, और उनके भाइयों का भी विवाह होना था। तो ये भी एक लीला थी भगवान की। विश्वामित्र मुनि इसके लिए निमित्त बने। परंतु वनवास में जाते समय उनकी आयु 27 थी। कितने सालों तक रहे वनवास में? नहीं, 14 साल तक रहे। तो जब वापस आए 41 उनकी आयु थी। और उसके बाद कितने सालों तक राज्य किया? 11,000 साल। 11,000 सालों तक श्री राम ने अयोध्या में राज्य किया, राम राज्य। और वैसे उस समय भी जब लव कुश वर्णन करते हैं, वो बताते हैं कि किस प्रकार वहां सारे जो भी नागरिक थे, प्रजा थी, वो सारे के सारे पूरी तरह से संतुष्ट थे। राम राज्य राम के समय से ही शुरू हुआ, बल्कि राम के आविर्भाव के पहले से ही शुरू हो गया दशरथ महाराज के साथ, बल्कि उससे पहले भी। तो अभी श्री राम जब आए तो 11,000 सालों तक रहे। और वाल्मीकि मुनि ने कब रामायण की रचना की? श्री राम के जन्म के पहले, या श्री राम के होते हुए, या श्री राम के तिरुभाव के बाद? होते हुए। कैसे बता सकते हैं ये? हाँ, लव कुश आए हैं और श्री राम वहां हैं। और इस समय श्री राम
अभी अयोध्या वनवास में जा चुके हैं या लौट के आए हैं? कैसे बोल सकते हैं ये? लव कुश कहाँ से आ गए? है ना? जब वनवास में गए तब लव कुश का जन्म नहीं हुआ था। तो श्री राम गए 14 वर्षों के लिए, फिर लौट के आए, फिर लव कुश का जन्म हुआ, फिर सीता देवी चली गई, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रही, जहाँ के लव कुश का जन्म वहां हुआ था। इसलिए श्री राम ने लव कुश को नहीं देखा था, इसलिए वो पहचान नहीं पाए कि ये मेरे पुत्र हैं। तो जब श्री राम अयोध्या लौट कर आए थे, तो उस समय वाल्मीकि मुनि की रामायण तैयार थी। तो इसलिए हम देखते हैं वाल्मीकि रामायण में कि कभी कभी वो बात करते हैं भूतकाल की, कभी कभी बात करते हैं भविष्यकाल की। इसका मतलब है कि एक स्थान था जब वाल्मीकि मुनि ने रचना की थी रामायण की, तो थोड़ी घटनाएं जो हो चुकी थी उनका भूतकाल में वर्णन किया, और आने वाले जितने भी घटनाएं थी उनका भविष्य काल में वर्णन किया। तो उन्होंने ये वर्णन किया, सही किया कि नहीं किया? भविष्य काल में क्या होना है उनको कैसे पता चला? ब्रह्मा जी के वरदान से। ब्रह्मा जी आए और उन्होंने वरदान उनको दिया कि आप जो भी लिखोगे वो सही होगा। आप भूत वर्तमान भविष्य तीनों की घटनाओं को जान पाओगे। श्री राम ने क्या किया और इनकी लीलाएं कैसे हुई, सब आप जान पाओगे। और जब तक यहाँ पे नदियां रहेंगी, पहाड़ रहेंगे, समुद्र रहेंगे, तब तक आपकी रचना जो है ये विद्यमान रहेगी। हम्म, तो जब तक सूरज चांद रहेगा, हम्म, तब तक आपकी रामायण यहाँ रहेगी। वैसे पहले 50-100 साल पहले भी भारत में जब कोई जमीन कोई खरीदता था या कोई किराए पे कुछ देता था हमेशा के लिए, तो वो ऐसे पट्टे में लिखा जाता था। जो हमारा मंदिर बेलगाम में है वो निरंतर पट्टा है। निरंतर पट्टा अर्थात किराए पे वो दिया जाता है परंतु निरंतर। तो 100-120 साल पहले किसी ने ये निरंतर पट्टा लिया था। तो इसमें लिखा जाता है, आप पढ़ेंगे, यावत चंद्र दिवाकरो, कि जब तक चांद और सूरज है तब तक ये पट्टा है। हम आपको किराए में देते हैं जब तक सूरज चांद है। ऐसे आज भी हमारे कायदे में है, वो कागज में है, यावत चंद्र दिवाकरो। दिवाकर अर्थात सूर्य, यावत मतलब जब तक। तो जब तक सूरज है, चांद है, ये पट्टा लागू है। तो खैर अभी आ, तो इसलिए व्यास देव, वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी ने फिर ऐसे आने वाले 11,000 सालों में भी जो होना है वो उन्होंने जान लिया ब्रह्मा जी के वरदान से। तो खैर अभी अयोध्या में आगे बढ़ते समय हम परिक्रमा कर रहे हैं अभी। तो ऐसे बताया जाता है कि अयोध्या की परिक्रमा की शुरुआत किसी एक स्थान से होना चाहिए। हम जब वृंदावन जाते हैं या व्रजमंडल परिक्रमा करते हैं तो ऐसे बताया जाता है कि मथुरा में केशव जी के यहाँ से शुरू करना चाहिए प्रार्थना। शिव जी का आदेश लेना है, उनकी कृपा लेनी है और वहां से फिर शुरू करना है। वैसे भी हर एक धाम में यात्रा के लिए कोई नियम होते हैं। इसी तरह से अयोध्या धाम की यात्रा, आप में से कितने भक्त अयोध्या गए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कितने भक्त गए? 1 2 3, बस। अच्छी बात है। तो आज हम जाएंगे अयोध्या। तो आज के बाद यदि आपको कोई पूछे कि अयोध्या धाम गए हैं कितने भक्त, सब लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं। आई तो
तो अयोध्या धाम के लिए जब परिक्रमा हम करते हैं, यात्रा करते हैं, तो ऐसे बताया जाता है कि श्री राम के परम भक्त की कृपा सबसे पहले प्राप्त करनी चाहिए, उसके बाद श्री राम के धाम की परिक्रमा करनी चाहिए। तो श्री राम के परम भक्त कौन है? हनुमान जी। देखिए सबके मुंह में एक ही शब्द आता है, हनुमान, है ना? क्यों? हनुमान जी का गौरव है ये। हनुमान जी कितने महान भक्त हैं। देखिए आपको सोचना नहीं पड़ा, जब हम हनुमान जी के कितने भक्त हैं, परंतु जब हमने परम भक्त कहा तो तुरंत सबके मन में एक ही नाम आया, सीता देवी का नाम भी नहीं आया, है कि नहीं? हालांकि सीता देवी का संबंध श्री राम से कितना निकट है, श्री राम की पत्नी है, फिर भी नाम आया हनुमान जी का। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है, और एक स्थान है जिसका नाम है हनुमान गढ़ी। पहले दिखाइए, हनुमान गढ़ी। इस स्थान में हमें पहले जाना है। सबसे पहले वहां जाके हनुमान गढ़ी में हमें हनुमान जी को प्रणाम करना है। और ये चित्र दिखाइए, हनुमान गढ़ी का चित्र। मुख्य द्वार, मुख्य द्वार होना चाहिए, द्वारा नहीं, मुख्य द्वार। तो ये हनुमान गढ़ी, ये गढ़, गढ़ क्यों नाम है गढ़ी? क्योंकि इसका निर्माण एक गढ़ के आकार में हुआ है, और ये अयोध्या नगरी के बीच में है, एक गुफे के अंदर है, और इसके कई सीढ़ियां हैं जिनको ऊपर चढ़ के ही हम वहां पहुंच सकते हैं। तो जब श्री राम लंका से अयोध्या लौट के आए रावण का वध करके, तो हनुमान जी भी उनके साथ में आए और उनकी सेवा के लिए अयोध्या में ही रहे। तो इस स्थान में हनुमान जी रहे थे, और यहाँ रह के उन्होंने जन्मभूमि का और संपूर्ण अयोध्या की उन्होंने रक्षा की। तो यहाँ ये मंदिर बना हुआ है अभी। और यहाँ अगला दिखाइए, मैं यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा आप चित्र दिखा रहे हैं। हाँ, तो मंदिर की हर दीवार पर भगवान श्री राम जी का नाम अंकित है। हाँ, तो ये हनुमान गढ़ी मंदिर के अलग अलग चित्र हैं। और यहाँ पे जो हनुमान जी का चित्र है वो बाद में देखेंगे। तो और भी दिखाइए, और एक मंदिर का दृश्य हम देख सकते हैं। जैसे हम यात्रा में जाते हैं तो उस मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर का दर्शन भी करते हैं, बाहर से भी अंदर से। तो अब बाहर से दर्शन कर रहे हैं हम। ये है हनुमान गढ़ी मंदिर। उसके बाद में हनुमान जी का दर्शन करते हैं। यह हनुमान जी, हाँ, हाँ, कतार में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, लाइन में। ये वीआईपी दर्शन सबको मिल गया अभी। हाँ, डिजिटल यात्रा है। तो यहाँ भगवान श्री भगवान नहीं, हनुमान जी का विग्रह है, बहुत सुंदर विग्रह है। बहुत छोटा, 6 इंच, 6 इंच का विग्रह है, जो अपनी माता के गोदी में बैठे हुए हैं। तो हनुमान जी की माता का नाम क्या है? अंजना देवी। इसलिए हनुमान जी के और कौन से नाम है? आंजनेय और अंजना नंदन इत्यादि। तो ये आंजनेय अंजना देवी के पुत्र हैं। और ये हनुमान जी का जो विग्रह है, ये पूरी तरह से फूलों की मालाओं से ढके हुए हैं, और सिंदूर से भी। क्योंकि वो लाल रंग पसंद उनको है। हनुमान जी की जगह आप जाते हैं, लाल लाल क्यों होता है आपको पता है ना? क्योंकि जब एक बार हनुमान ने देखा था
ये सीता देवी के बाल में लाल है, तो उन्होंने सीता देवी से पूछा ये लाल क्यों है। क्योंकि श्री राम प्रसन्न होते हैं उससे। तो हनुमान जी का हृदय थोड़ा भोला था, उन्होंने सोचा अच्छा लाल ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, लाल रंग से तो राम प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने फिर अपने सारे शरीर में लाल रंग ऐसे लगा दिया। इसलिए हनुमान जी के अनेक जो विग्रह होते हैं उनका रंग लाल होता है। और यहाँ पे एक सदैव हम देखते हैं कि एक चांदी का हार है, चांदी की माला है, आप देख रहे हैं ना इस दृश्य में, और इसमें राम नाम है। आप देख रहे हैं। और तरह तरह अन्य अन्य आभूषणों से सुसज्जित हैं हनुमान जी यहाँ पे। और साथ साथ में यहाँ पर सीता देवी और सीता राम लक्ष्मण के विग्रह भी हैं, बहुत सुंदर हैं। और इनके पीछे नरसिंह भगवान का विग्रह है, वो चित्र हमें नहीं मिल पाया, नहीं तो वो भी हम दिखाते थे आपको। और मंदिर के अंदर अच्छा सीताराम लक्ष्मण जी का हम ये चित्र देख सकते हैं हनुमान गढ़ी में। आपने देख लिया ना? तो दर्शन अच्छी तरह से कर लीजिए। और मंदिर के प्रांगण में एक विजय स्तंभ है जो कि हनुमान जी लंका से लाए थे। श्री राम विजय का एक स्मारक के रूप में वो वहां पे स्थापित है, विजय स्तंभ। और यहाँ पर अगला वाला, यहाँ पे अखंड कीर्तन होता है। हनुमान गढ़ी के इस मंदिर में हनुमान जी के भक्त जो हैं वो या श्री राम के भक्त वो राम नाम का सतत कीर्तन करते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दूं इसकी। ये है हनुमान गढ़ी, ठीक है। कितना सुंदर है देखिए मंदिर, जी मंदिर का आकार भी देखिए कितना अच्छा है। हम्म और सब जगह राम नाम अंकित है, आप देखेंगे। और जो हनुमान जी का विग्रह है, आप बहुत छोटा सा देख सकते हैं उनका चेहरा, लाल रंग का सिंदूर, हनुमान जी का जो विग्रह है। हम्म क्योंकि सब फूल मालाओं से आभूषणों से ढका हुआ है उनका शरीर। सीता राम लक्ष्मण इनका भी विग्रह आपने देख लिया, भक्तों का विग्रह भी देख लिया। ठीक है, तो हनुमान गढ़ी में हम जल्दी से गए। अब दूसरे स्थान में जाएंगे जिसका नाम है श्री काले राम मंदिर या काला राम मंदिर। हम्म? तो ये काले राम, काला राम क्यों है उनका नाम, काले राम या काला राम? क्योंकि एक शिला से बना हुआ है ये सारे विग्रह है। तो अगला दिखाइए। तो ये अयोध्या में एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। यहाँ पे एक ही शालग्राम शिला से संपूर्ण राम दरबार बना हुआ का निर्माण हुआ है। वैसे महाराज विक्रमादित्य ने इसकी स्थापना की थी, और लेकिन जब फिर बाबर आया उस समय, तो बाबर के डर से, बाबर के जो भी लोग थे सैनिक वगैरह थे, उनके आक्रमण के डर से, तो फिर वहां के जो पुजारी थे उन्होंने सरयू नदी में इन विग्रहों को छुपा लिया। हाँ, अयोध्या के संबंध में जब हम बात कर रहे हैं तो सरयू नदी को भूलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से वृंदावन यमुना के तट पे है, उसी प्रकार से अयोध्या सरयू नदी के तट पे है। तो सरयू की चर्चा भी हम करेंगे। तो इस सरयू नदी में उन्होंने
छुपा लिया विग्रहों को। और बाद में ऐसे का समय बीत गया, अनेक वर्ष बीत गए। फिर हुआ ये कि महाराष्ट्र का एक ब्राह्मण था, उसके सपने में श्री राम आए और उन्होंने बतलाया कि देखो मैं अभी यहाँ सरयू नदी के जल में हूँ, छुपा हुआ हूँ, और ऐसे ऐसे हुआ था। तो इस प्रकार फिर जब वो उन्होंने ढूंढ लिया तो उनको पता चला कि वहां पे विग्रह थे। तो उन्होंने विग्रह निकाले बाहर और उनकी प्राण प्रतिष्ठा पुनः कर ली और वहां एक मंदिर बना। और आज भी वही जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं, उनके वंशज यहाँ पर इस मंदिर में सेवा करते हैं। तो ये कालेराम मंदिर के अनेक दृश्य हैं, आप देखिए। यहाँ पर हनुमान जी का विग्रह भी है, जो कि एक शालग्राम शिला से बना हुआ है। तो न केवल सीताराम राम दरबार एक शिला से बने हुए हैं, लेकिन अन्य एक अलग शिला से हनुमान जी भी बने हुए वहां पर विराजमान हैं। तो और दृश्य दिखाइए काले राम मंदिर का। नहीं ठीक है, इतना ही है, एक ही है चित्र। ठीक है, फिर से दिखाइए काले राम मंदिर का दृश्य। पहला एक ही है, हाँ दो है, दो है। तो ये मुख्य राम दरबार देखिए एक शिला से है, वो पहला वाला दिखाइए। हाँ, एक शिला से ये बनी हुई है वास्तव में। और फिर हनुमान जी, तो ये है श्री कालेराम या काला राम मंदिर। तो इन मंदिरों के नाम याद रखिए जब आप जाएंगे अयोध्या। पहला स्थान कौन सा था? हनुमानगढ़ी। अब दूसरा स्थान कालेराम या काला राम मंदिर। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे दशरथ महाराज के महल में। दशरथ महल। अच्छा ये बताइए, दशरथ महाराज का नाम पहले से दशरथ था क्या? कौन बताएंगे? उनका पहला नाम था नेमी। फिर उनको दशरथ नाम क्यों लगा? 10 दिशाओं में, संस्कृत में 10 को दश कहते हैं ना, दश रथ। तो रथ को 10 दिशाओं में वो ले जा सकते थे। 10 दिशाएं, ऊपर नीचे पूर्व, जितने भी दिशाएं हैं, 8 8 दिशाएं यहां पर और ऊपर नीचे। तो 10 दिशाएं हो गई। तो अपने रथ को 10 दिशाओं में किसी भी गति पे वो चला सकते थे। तो रथ चलाने में वो इतने प्रवीण थे कि उनका नाम दशरथ हुआ। आसमान में भी जा सकते थे उनको रथ को लेकर, ऊपर नीचे बाएं दाएं किधर भी ऐसे जा सकते थे। और बहुत शूरवीर थे। वो एक अतिरथी थे, केवल रथी नहीं, महारथी नहीं, अतिरथी। अनेक हजारों योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध करने में सक्षम थे। इसलिए रथ के ऊपर बैठ के जो उनकी कार्य थे वो इतने अद्भुत थे कि उनका नाम बन गया दशरथ। दशरथ के पिताजी कौन थे? दशरथ। देखिए साधारण दुनिया में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता किसके पिता कौन है, किसका कौन है, वंशावली का ज्यादा महत्व नहीं है। हम देखेंगे कि वैदिक शास्त्रों में, पुराणों में, चाहे वो श्रीमद् भागवतम हो, रामायण हो, महाभारत हो, हम वंशावलियों के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत में कितने वंशावलियों का वर्णन है, आपने पढ़ा होगा। इनके पुत्र ये हुए, उनके पुत्र, कई कई पीढ़ियां ऐसे चलती हैं। तो ऐसे क्यों है? क्योंकि ये सब भगवान और भगवान के भक्तों से संबंधित हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में दशरथ श्री राम के वंशावली का वर्णन भी है। तो श्री राम के पिता थे दशरथ, दशरथ के पिता थे अज, और अज के पिता थे रघु। बहुत अच्छा, रघु।
रघु भी बहुत बड़े योद्धा थे, शूरवीर थे, रथ चलाने में बहुत सक्षम थे और इतने शूर थे, वीर थे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं। इसलिए उनके बाद में आने वाले वंश इसको रघुवंश कहते हैं। यद्यपि रघु बहुत बाद में आए, राजा इक्ष्वाकु के बहुत बाद में आए वो, परंतु ये वंश इक्ष्वाकु वंश से अधिक रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध है ये, है ना। और श्री राम के भी बहुत सारे नाम हैं जो राजा रघु से संबंधित हैं। ऐसे आप नाम बता सकते हैं? राघव, फिर रघुवीर, रघुनंदन, फिर रघुपति, राघवेंद्र। ऐसे बहुत सारे नाम है। रघुकुल तिलक, आपने इक्ष्वाकु कुल तिलक बताया ना, तो अब क्यों नहीं रघुकुल तिलक हो सकता है ना, और है भी ऐसे नाम। तो ऐसे बहुत सारे नाम रघु से हैं, ऐसे रघु के पिता ऐसे करके इक्ष्वाकु तक जाते हैं। तो ये है दशरथ महाराज। दशरथ महाराज वैसे न केवल एक अतिरथी थे, वो एक बहुत बड़े ऋषि भी थे, राज ऋषि। बल्कि ऐसे बताया जाता है कि केवल राज ऋषि नहीं, वो प्राय महर्षि के स्तर में थे। तो आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत आगे बढ़े हुए थे। तो पूर्व कालों में, जो वैदिक काल में अधिकांश राजा थे वो राज ऋषि हुआ करते थे, राजा भी थे, ऋषि भी थे। तो राजा दशरथ के समय में भी कहा जाता है कि केवल उनके धार्मिकता के कारण सारा राज्य जो है वो, उसमें सब जगह मंगल फैला हुआ था, सारे प्रजा जो है वो बहुत संतुष्ट थी। जो जैसे मैंने पहले कहा, जो राम राज्य है वो दशरथ महाराज और उनके पहले से भी प्रारंभ हो चुका था। तो दशरथ महाराज, हाँ ये अगला वाला दिखाइए। तो दशरथ महाराज जिस स्थान में रहते थे अपने परिवार सहित, वो है दशरथ महल। ये तो आधुनिक काल में बने हुए होंगे, पिछले कई शतकों पहले, कई सदियों पहले या शतक पहले बने होंगे, परंतु देखिए कितने सुंदर ढंग से भी उनको रखा है। आप देख रहे हैं ना। तो ये वही स्थान है जहां महाराज दशरथ रहते थे, और ये वही स्थान है जहां श्री राम और उनके भाइयों की बाल लीला हुई थी। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न अपने अपने परिवारों के साथ यहाँ रहते थे दशरथ महल में। तो ये उनके बाल लीलाओं का स्थान है। इसको बड़ा स्थान या बड़ी जगह भी कहा जाता है। तो थोड़े चित्र दिखाइए अभी आप दशरथ महल का। हाँ, अच्छा। यात्रा में जाते जाते भी ऐसे होता है ना, कभी कभी देर हो जाती है, कभी दर्शन नहीं मिलते हैं, तो ऐसा भी यहाँ थोड़ा कुछ होना चाहिए। पर बीच में भी राम भावना होनी चाहिए। हो गया, हो गया, ठीक है। तो दशरथ महल, कौन सा दृश्य दिखा रहे हैं? पहला वाला नहीं, लेकिन उस कई चित्र है ना। हाँ, प्रवेश द्वार है, ठीक है। अगला दृश्य दिखाइए, अंदर जहाँ सिंहासन है, जहां पर विग्रह हैं, राम दरबार, दशरथ महाराज के विग्रह, दशरथ महाराज भी वहां पर हैं। देखिए कितना सुंदर है। प्राचीन काल की आकार आदि है, आप देख रहे हैं। और बीच में दशरथ महाराज हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ।
ठीक है, आगे अगला सीताराम लक्ष्मण के विग्रह दशरथ महल में, और फिर एक चित्र है वहां पे महाराज दशरथ अपने 4 पुत्रों के साथ में। तो ये है दशरथ महल। और यहाँ पे चित्र अनेक हैं, क्योंकि भगवान की बाल लीलाएं इस स्थान में हुई थी, इसलिए इन चित्रों में हम देख सकते हैं कि कैसे श्री राम अपनी बाल लीला में माता कौशल्या के गोदी में हैं और वहां पे कुछ लीला कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है दशरथ महल, श्री राम की बाल लीला का स्थान। तो दशरथ महल से अब हम जाएंगे कनक भवन में। बाल लीला के बाद जब भगवान बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो कैसे यहाँ भी होता है ना, घर छोटा पड़ जाता है तो फिर लड़का अपने पत्नी के साथ दूसरे घर मकान में जाता है। पहले एकत्र सब रहते हैं, तो उस समय उनको खरीद के कोई देते हैं घर, चलो वहां जाके रहो। तो कनक अर्थात सोना, तो सोने का भवन। ये जब श्री राम का विवाह हुआ सीता देवी के साथ, तो सीता देवी को ये कनक भवन एक भेंट या उपहार दिया। किसने दिया? माता कैकेयी ने। वही कैकेयी जो कि आगे चल के श्री राम के वनवास जाने का कारण बन गई। परंतु ये केवल परिवर्तन मंथरा को मिलने के बाद हुआ। इसके पहले कैकेयी के मन में इतना स्नेह श्री राम और सीता के प्रति था जितना कि कौशल्या के मन में भी था। पूरी तरह से कौशल्या कैकेयी देवी भी श्री राम से प्रेम करती थी। तो उन्होंने ये पूरे सोने का जो महल है उसको भेंट में दिया सीता देवी को। और फिर श्री राम और सीता देवी इस महल में रहते थे, कनक भवन में। तो कनक भवन का चित्र दिखाइए। ये है कनक भवन। और यहाँ पे सीताराम के 3 विग्रह हैं। और दिखाइए आगे। कनक भवन के और दृश्य बाहर से आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा है, सुंदर भी है। अब आगे। हाँ। तो श्री सीताराम जी के विग्रह हैं। यहाँ कितने विग्रह दिख रहे हैं आपको? आगे और आगे और आगे नहीं, ठीक नहीं। नहीं, केवल 4 आपको कैसे दिख रहे हैं? सीताराम सीताराम और छोटे विग्रह नहीं दिख रहे हैं नीचे? हाँ, 6 विग्रह हैं। इसलिए मैंने सोचा कैसे गलत चित्र तो नहीं दिखाया आपको। तो यहाँ सीताराम की 3 जोड़ियां हैं इस कनक भवन में। और ऐसे बताया जाता है, तो एक राजा थे, ये तो ज्यादा समय नहीं हुआ, उन्होंने ये इन विग्रहों की स्थापना की। जो बाएं तरफ है, अब दाहिने तरफ है, जो बाएं तरफ है, उन विग्रहों की स्थापना महाराज विक्रमादित्य ने की थी। आपने जो इतिहास पाठशाला में पढ़ा होगा, महाराज विक्रमादित्य का नाम अवश्य सुना होगा। और जो छोटे विग्रह हैं सीताराम के, उनकी स्थापना किन्होंने की?
हम बता सकते हैं? भगवान कृष्ण ने, स्वयं भगवान कृष्ण ने। इसलिए वहां पर एक शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन, जिसमें ये बताया गया है कि ये कैसे हुआ। ऐसे एक लोक कथा भी है कि ऐसे बताया जाता है कि वैसे द्वापर युग के प्रारंभ में श्री राम के पुत्र कुश, उन्होंने श्री राम के स्मरण में ऐसे ये मंदिर बनवाया और वहां पे ये सीताराम के विग्रह रहे। फिर द्वापर युग में और एक राजा थे जिनका नाम था ऋषभ देव। भगवान के अवतार ऋषभ देव नहीं, ये और एक ऋषभ देव है। उन्होंने ये मंदिर बनवाया और द्वापर के अंत में ऐसे कहा जाता है कि श्री कृष्ण वहां स्वयं आए थे। उन्होंने दर्शन भी लिया था वहां और इन विग्रहों की स्थापना श्री कृष्ण ने की थी। और फिर बाद में कलयुग में महाराज विक्रमादित्य ने और विग्रह ये जो लाए वहां पे। तो फिर आगे चल के जब यवनों का आक्रमण हुआ, फिर से बहुत उथल पुथल वहां पे हो गया। अब एक लोक कथा वहां ऐसी है कि जब श्री कृष्ण वहां पे आए थे तो उन्होंने ये सीताराम के जो छोटे विग्रह हैं एक महिला साधु को दे दी। साध्वी जो वहां पे निवास करती थी, उस स्थान में बैठ के वो श्री राम के ऊपर ध्यान करती थी। और श्री कृष्ण ने इस साध्वी को आदेश दिया कि प्राण त्यागने के पहले आप इन विग्रहों को जमीन के अंदर समाधि ऐसे रख दीजिए, ताकि आगे चल के कोई बहुत पुण्यवान राजा, कोई राज ऋषि आएंगे, जब वो यहाँ पे कुछ कार्य करेंगे तब उनको ये विग्रह प्राप्त हो जाएंगे और फिर वो नए मंदिर का निर्माण करेंगे। और ऐसे ही हुआ कि जब ये साध्वी अपने प्राण त्यागने की तैयारी में थी तो भगवान श्री कृष्ण का आदेश का पालन उन्होंने किया। उन विग्रहों को उन्होंने जमीन में गाड़ दिया और किसी को पता नहीं चला। फिर अनेक वर्षों बाद जब महाराज विक्रमादित्य वहां थे, वो खुदाई कर रहे थे और इस अयोध्या स्थान के जो लीला स्थलीय हैं उनको फिर से स्थापित करना चाहते थे, तो उनको खुदाई के समय ये विग्रह मिल गए। फिर उन्होंने इनकी भी स्थापना की। तो इसलिए 3 जोड़ियां जो सीताराम की है, उनमें से सबसे छोटी जो जोड़ी है वो है श्री कृष्ण द्वारा प्रस्थापित, जो कि द्वापर युग में हुआ था। और कोई चित्र है? श्री राम, राम विवाह, भगवान राम का सीता के साथ विवाह, ये चित्र भी आप वहां पे पाएंगे अंदर कनक भवन में। देवगण भी फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। और कनक भवन के दीवारों में जो शिलालेख है उसका भी एक चित्र यहाँ पर है। ठीक है, तो आज अब 10 बजने को आए, 8:30 से 10 बजे की कथा थी। तो आज शाम को हम यात्रा को जारी रखेंगे और बहुत सारे स्थान हैं, कम से कम 13-15 स्थान और हैं जिनमें हमें जाना है यात्रा के लिए। तो शाम के समय कितने बजे होगा होगी कथा? 6 बजे, 6:45 को। अच्छा, तो 6 से 6:45 अभिषेक और 7:45 कथा होगी ना। तो 7:45 से 8:15 तक हम अयोध्या यात्रा जारी रखेंगे। तो अब तक हम अयोध्या में कौन सी जगह में गए हैं? हनुमानगढ़ी, काले राम मंदिर, दशरथ महल, कनक भवन। और अयोध्या की यात्रा पूर्ण नहीं होगी जब तक हम सरयू नदी में नहीं जाएंगे। तो शाम को सबसे पहले हम सरयू नदी का दर्शन करेंगे, सरयू नदी के बारे में सुनेंगे और सरयू नदी के घाट में कितने सुंदर स्थान हैं वो सारे हम देखेंगे आज शाम को। श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय।
श्री राम नवमी महोत्सव की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अयोध्या धाम की जय।